Hello and welcome. Good morning to all of you. Greetings of the day, dear students, friends, colleagues. Today we are going to discuss comparative and superlative form of adjectives, or you may call it degrees. And this is very important from the examination point of view, and it is useful. I am Ramakant Sharp, Principal MGGS Government English Medium School, who is going to present this lesson before you. तो आइए अब हम आपके साथ बिना समय गवाए हुए कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को किस तरीके से हम बनाते हैं, इस पर हम चर्चा आपसे करते हैं. तो लेट अस प्रोसीड. देखिए, देयर आर 3 ways ऑफ मेकिंग कंपैरिजंस. कंपैरिजंस को बनाने के 3 तरीके होते हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस देम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड यू शुड प्लीज कीप योर पेन एंड पेपर रेडी विद यू सो दैट you can note down the important points we are discussing here in this video. तो जो पहला है वो है study the following sentences. I am going to provide you some of the sentences here. Please read them and try to understand what does the sentence convey to you. Her house is as big as mine. Her house is as big as mine. This book is as interesting as the one I read last week. Now we have studied these 2 sentences. So let us deduct something important from these 2 sentences. And what we are going to deduct? We are going to deduct the sentence pattern. So what will be the sentence pattern? You have to note it down. It is the first way from the 3 ways we are going to discuss. The sentence pattern is as plus ordinary form of adjective or adverb plus as. मतलब इसका जो सेंटेंस पैटर्न है वो होगा कि हम as लगाएंगे, फिर कोई भी एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा उसका ऑर्डिनरी फॉर्म लगाएंगे और फिर हम as लगाएंगे. So you have to note it down carefully. This is the first way that we are going to discuss, that we have discussed. So now the second, study the following sentences carefully. The first one is, her essay is longer than mine. Her essay is longer than mine. This book is more interesting than the one I read last week. Now we have studied these 2 sentences. So let us deduct something from these 2 sentences also. And what we have deducted? We have deducted the sentence pattern here again. Now what will be the sentence pattern? So note it down. We will have the comparative form of adjective or adverb. जैसे longer है और more interesting है, और उसके बाद में then लगा हुआ है इसमें. तो ये एक हमारे सामने निकल करके एक नई चीज आ रही है. एंड नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट आ रहा है वो है study the following sentences. Now I am again going to provide you one more sentence pattern here. So study these 2 sentences. Her essay is less long than mine. Less long. Less long is also a comparative form. This book is less interesting than the one we read last week. इसमें less interesting के बाद में और less long के बाद में then का यूज करके इसको comparative में बनाया गया है. So we are also going to deduct some important thing here. One more sentence. He did the exercise less carefully than I did. Now it is time to deduct the sentence pattern structure here. So just see the carefully. Less आएगा सबसे पहले, then ordinary form of adjective और adverb आएगा और then आएगा लास्ट में. ये हमारा सेंटेंस पैटर्न होगा इसमें. तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें 3 पैटर्न को देख लिया.
सबसे पहले हमने देखा कि जिसमें एज लगा हुआ है, उसके बाद में हमने कंपैरेटिव डिग्री और देन देखा, और जिसमें ER लगा हुआ था या मोर लगा हुआ था, और उसके बाद में हमने देखा लेस लगा हुआ हमारे सामने है। तो तीन चीजें निकल के आ रही है। सो वी शुड नोट डाउन व्हाट particular attention should be paid to these 3 points. And what are the points? The first one is when we use as pattern, the ordinary form of adjective or adverb must be used. कि as में हम adjective या adverb का जो ordinary form है उसको use करेंगे. Then the comparative form of adjective or adverb in the second pattern must be followed by then. When comparative form is used, तो उसके बाद में then का use किया जाएगा. Now the next is the third pattern is rare. We normally express the idea of less by using the negative form of the first pattern. हम बहुत ही कम जो है इस थर्ड पैटर्न को यूज करते हैं, हम लेस का यूज करके नेगेटिव फॉर्म लगाते हैं, हमने लगाया है यहाँ पर। तो ये तीन चीजें हमारे सामने निकल करके आई हैं, जिसमें देखिए हर ऐसे इज नॉट एज लॉन्ग एज माइन, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, द बुक इज नॉट एज इंटरेस्टिंग एज द वन आई रेड लास्ट वीक। नाउ द नेक्स्ट इज he didn't do the exercise as carefully as I did. So we have discussed these 3 ways and you might have noticed them very carefully. आपने बहुत ध्यान से इन सभी को नोट किया होगा, निश्चित रूप से आपके लिए ये important है। There is one more way to use negative form. क्या है वो देखिए, in the negative form of this pattern we replace the first as by so. as वाला जो है उसमें पहले as में हम so लगा देंगे और दूसरा as ऐसे की ऐसे ही रहने देंगे। तो देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर कि हर ऐसे is not so long as mine, एक तो so long है ना, उसका ऐसे जो है इतना लंबा नहीं है जितना मेरा है। नेक्स्ट देखिए, This book is not so interesting as the one I read last week. तो so आ गया और note आ गया उससे पहले, ठीक है, और फिर अपन ने बाद में दोनों में as लगा रखा है। तो ये एक नया पैटर्न अपने सामने आ रहा है। He didn't do the exercise so carefully as I did. So और as फिर आ गया did not लगा करके। तो यहाँ से हमें एक चीज और निकल करके आ रही है, और वो क्या है देखिए, वो हम इसमें नेक्स्ट में देखने जा रहे हैं कि अनदर वे ऑफ अवॉइडिंग द यूज ऑफ लेस बाय यूजिंग द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव अपोजिट मीनिंग टू रिप्लेस द एडजेक्टिव इन द अबव सेंटेंस। यदि हमें लेस को अवॉइड करना है तो हम उसका अपोजिट मीनिंग जो है एडजेक्टिव का वो यूज करते हैं। जैसे देखिए क्या था, हर ऐसे इज शॉर्टर देन माइन, हर ऐसे इज शॉर्टर देन माइन, वो लॉन्ग का अपोजिट हो गया ना शॉर्टर, तो शॉर्टर हो गया। दिस बुक इज फैटर देन द वन आई रेड लास्ट वीक, एक ये हो गया। नेक्स्ट देखिए अपोजिट है, ही डिड द एक्सरसाइज मोर केयरलेसली देन आई डिड। तो तीनों के जो है इसमें अपोजिट फॉर्म को यूज करके आप लेस को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये एक है इसमें। तो अब ये आपने नोट कर लिया होगा, शायद समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, चलो प्रोसीड। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं सम सेंटेंस पैटर्न विद द सुपरलेटिव। सुपरलेटिव के साथ में सेंटेंस पैटर्न क्या होंगे उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने कंपैरेटिव के 3 सेंटेंस पैटर्न लिए थे, यहाँ सुपरलेटिव के भी हम 3 मेन पैटर्न्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये ध्यान दीजिए आप। द फर्स्ट वन इज हर ऐसे इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। स्टडी दीज सेंटेंसेस।
her essay is the longest of all. So the next is, this book is the most interesting one I have ever read. ओके, द आ गया इसमें। नेक्स्ट देखिए, he did the exercise the most carefully of all the boys in the class. तो ये हमारे सामने निकल करके आए हैं। अब इसमें जो सेंटेंस पैटर्न है उसको स्टडी करते हैं अपन। क्या स्टडी पैटर्न इसका निकल करके आ रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल, देन द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब। जैसे द आ गया, लॉन्गेस्ट हो गया, द आ गया मोस्ट इंटरेस्टिंग हो गया, द आ गया मोस्ट केयरफुली हो गया। तो ये हो गया अपने पास में एक नया। अब नेक्स्ट इज सुपरलेटिव का एक और पैटर्न हमारे सामने आ रहा है और वो है कि हर सारी इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सबमिटेड फॉर द कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट इज दिस बुक इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग आई हैव एवर रेड। इसका सेंटेंस पैटर्न क्या होगा देखिए, इसका सेंटेंस पैटर्न कुछ एकदम उससे अलग होगा। क्या है देखिए, कि सबसे पहले वी हैव यूज्ड वन ऑफ, then we have used the definite article there, and then the superlative form of the degrees, adjective, one of the longest, one of the most interesting। ये हमारा सेंटेंस पैटर्न में निकल करके आ रहा है। ये हो गया हमारा सेकंड सेंटेंस पैटर्न। नाउ द नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट के बारे में देखने जा रहे हैं। इसका जो सेंटेंस पैटर्न है वो ये होगा, ऑफ ऑल द एसेज सबमिटेड हर्स इज द लीस्ट लॉन्ग, ऑफ ऑल द बुक्स आई हैव रेड दिस वन इज द लीस्ट इंटरेस्टिंग, ही डिड द एक्सरसाइज द लीस्ट केयरफुली ऑफ ऑल द बॉयज इन द क्लास। तो इसमें एक चीज निकल करके आ रही है, इसके सेंटेंस पैटर्न को अपन फिर से देखेंगे। So what we are going to discuss, the sentence pattern. So note it down. First of all, we have used the definite article there. उसके बाद में least का यूज किया और उसके बाद में ordinary form of adjective और adverb का हमने यूज किया है यहाँ पर। तो ये एक स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया। Now we have to note down some important aspects here also. तो क्या मेन पॉइंट्स नोट करने के हैं कि whereas the comparative is to compare one or more things or persons with other, the superlative is used to compare one or more things or persons with more than one another. इसमें क्या है कि कंपैरेटिव में हम एक या एक से अधिक वस्तुओं या वस्तुओं की तुलना करते हैं या व्यक्ति की तुलना करते हैं, और सुपरलेटिव में हम एक या एक से अधिक जो है वस्तुओं या व्यक्तियों की अधिक से अधिक की तुलना करते हैं। सम ठीक है ना, सबसे अधिक तुलना कर देते हैं। तो एक पॉइंट ये निकल करके आ रहा है। नाउ द नेक्स्ट इज द इज नियरली ऑलवेज यूज्ड बिफोर द सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में द का यूज होगा सभी में। नियरली ऑलवेज है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई एक्सेप्शन भी है, वो हम डिस्कस करेंगे कैसे है। देखिए, तो सुपरलेटिव कैन नॉट बी फॉलोड बाय देन, सुपरलेटिव के बाद में देन नहीं आएगा। मोस्ट कैन ऑल्सो मीन वेरी, मोस्ट का मतलब वेरी भी होता है, एंड दिस इन दिस केस इट डज नॉट टेक द डेफिनेट आर्टिकल। जब मोस्ट का मतलब वेरी होगा तो डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगेगा। It must be noted down by all of us. It is important from the competition and examination point of view. क्या होगा देखिए, this is a most valuable picture। देखिए इसमें कि very का मतलब है इसमें, इसलिए हम इसके आगे the का यूज नहीं कर रहे हैं बल्कि a का यूज कर रहे हैं। और more sentence, he is most smart boy, इसका मतलब वेरी का यूज यहां पर हम कर रहे हैं। इसको ध्यान से देखना है अपने को। अब देखिए नेक्स्ट, मोस्ट समटाइम्स हैज द मीनिंग ऑफ मेजॉरिटी, एंड इन दिस केस टू इट डज नॉट टेक द डेफिनेट आर्टिकल। कि मोस्ट का मतलब मेजॉरिटी से भी होता है, तो वहां पर भी हम
डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज तो एक तो हो गया हमने कि जब वेरी का यूज करें तब नहीं होगा, और एक जब हम मेजॉरिटी के मीनिंग को बताएं तब नहीं होगा। देखिए यहाँ पर अगेन वी आर कोटिंग सम सेंटेंसेस। मोस्ट पीपल आई हैव स्पोकन टू सपोर्ट माई आइडिया, हो गया। नेक्स्ट, मोस्ट सिटीज नाउ हैव पाइप्ड गैस लाइन्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू मस्ट नोट डाउन। नाउ द नेक्स्ट इज, जो आगे हम नोट करने जा रहे हैं उसको जरूर देखिए ये क्या है। देखिए कि फॉर्मेशन ऑफ द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का फॉर्मेशन कैसे कैसे होगा, इसको अपन को यहाँ पर देखना है। एंड एवरी पॉइंट मस्ट बी नोटेड डाउन बाय यू वेरी केयरफुली, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव ए एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द चैप्टर। सो नोट डाउन प्लीज। Adjective and adverbs of one syllable make the comparative and superlative by adding er and est। यदि किसी adjective या adverb के बाद में हम er और est लगा दें तो हम एक तरीका इसमें यूज करते हैं इसको सुपरलेटिव या कंपैरेटिव बनाने का। एग्जाम्पल देखिए, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉलर में er लगा हुआ है और टॉलेस्ट में est लगा हुआ है। बिग, बिगर, बिगेस्ट। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। बट एक चीज और है वो देखने की, ये क्या है कि टोर्न, मोर टोर्न, मोस्ट टोर्न, ये होगा। अब ये कैसे होगा? बिकॉज द वर्ड टॉर्न हैज यूज्ड हियर एज एन एडजेक्टिव, बिकॉज टॉर्न इज द थर्ड फॉर्म, दैट इज टू पास्ट पार्टिसिपल है, और यहां पर हम इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज कर रहे हैं। इसलिए हम टॉर्न के साथ में मोर और मोस्ट लगा के इसको भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट देखिए कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने का, कि एडजेक्टिव्स एंडिंग इन वाई, er और आउ, ow form the comparative and superlative with er and est। कैसे देखिए कि pretty, prettier, prettiest, y से एंड हो रहा है pretty। इसी प्रकार से clever, cleverer, cleverest, clever er से एंड हो रहा है। narrow, ow से एंड हो रहा है narrow, narrower, narrowest। तो हम इसको भी जो y से er से और ow से एंड हो रहे हैं उसको भी हम er और est लगा करके कंपैरेटिव बना सकते हैं। तो ये एक नया चीज निकल के आ रही है। नाउ द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्या है कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने का, कि एडजेक्टिव्स एंडिंग इन y, er और ow फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव विद मोर एंड मोस्ट। हम मोर एंड मोस्ट भी लगा करके इनके साथ में कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बना सकते हैं। कैसे देखिए, होपफुल, more hopeful, most hopeful, honest, more honest, most honest, selfish, more selfish, most selfish, beautiful, more beautiful, most beautiful। इसी प्रकार से efficient, more efficient, most efficient, attractive, more attractive, most attractive। ये एक हमारा सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बनाने का एक तरीका और है। नाउ द नेक्स्ट इज, जो फॉर्मेशन है उसको देखेंगे कि एडवर्ब्स एंडिंग इन ly फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव विद मोर एंड मोस्ट। सम एडवर्ब्स जो कि ly से एंड होते हैं उनको हम मोर और मोस्ट लगा करके भी जो है सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बना सकते हैं। तो क्या है वो देखिए, लाउडली, ly से एंड हो रहा है, मोर लाउडली, मोस्ट लाउडली, रूडली, मोर रूडली, मोस्ट रूडली, नीटली, मोर नीटली, मोस्ट नीटली। सर्टेन एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स हैव इररेगुलर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म। कुछ इररेगुलर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म भी होते हैं, और वो इररेगुलर क्या है देखिए जरा, गुड,
वेल इसका बेटर और बेस्ट हो जाएगा, बैड या बैडली का वर्स और वर्स्ट हो जाएगा। ये इरेगुलर फॉर्म्स में आ रहा है। मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, ये हमने आपको बताया है कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं। अब आप लोग शायद समझ गए होंगे। यदि आप किसी जगह अटक रहे हैं तो प्लीज rewind the video and go through the video once again। और मैं कमेंट बॉक्स में मेरा ईमेल और मोबाइल नंबर भी देता हूं, तो आप वहां से भी अपनी शंकाएं समाधान करेंगे, आपके प्रश्नों का जवाब आपको दिया जाएगा। So let us proceed towards a very simple exercise at the end of the chapter. Complete the following sentences using the as और so as कंस्ट्रक्शन। इसमें हम एक पार्ट में आपको क्वेश्चन देने वाले हैं और दूसरे पार्ट में आप आंसर देंगे। मैं आपको adequate time will be given to you so that you can answer and you can check your answer with mine answer. The first question is, his writing is untidy mine। तो अब आप इसमें यूज करिए, आपने शायद कर लिया होगा। His writing is as untidy as mine। Now the next is, my new watch is not accurate, my old one। अब देखिए कौन सी चीज आपको इसमें भरनी है। वेरी गुड आंसर, चेक करिए अपने आंसर को। My new watch is not so accurate as my old one। Now the next is, this dictionary is not useful, the one we had last year। इसको कैसे यूज करेंगे? This dictionary is not so useful as the one we had last year। Now the next is, this month is dry, it usually is। तो इसका कैसे होगा? This month is not so dry as it usually is। She is fat, her mother। Good, she is as fat as her mother। My mark was high, yours। My mark was as high as yours। And the last is, she speaks French well, he speaks Hindi। And the answer is, she speaks French as well as he speaks Hindi। तो आपने ये एक्सरसाइज की और आपको शायद एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, और इसको हमारे और वीडियोस को आप देखते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें। आपके कमेंट्स हमें बहुत यूजफुल होते हैं। हमारे जो है उसको आप देखते रहें और अपने फ्रेंड्स को शेयर और फॉरवर्ड करते रहें। थैंक यू वेरी मच अगेन।